بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی 12واں حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ تاریخی کہانی صلاح الدین ایوبی کی امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھیں، کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں اضافہ کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے۔ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانے اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں 2 بڑی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اس روشنی میں 5 لڑکیاں لاگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگی۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی 2 رہ گئے، ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سودانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے، وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مشلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ ہر لاش ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں انہیں ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دی جو دور نکل گیا۔ بالیان نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گھوڑا بمازین غائب تھا۔ اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھی، ان میں ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا، باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، یوگی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائی یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی ہے۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے، معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بالیان نے کہا۔ میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔
जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहल पर सुल्तान यूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जुबान बोलते थे, उनका लिबास भी इटली के देहातियों जैसा था। इनकी जुबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सलार से मिलना चाहते हैं। इन्हें बहाउद्दीन शुद्दाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाहुद्दीन यूबी की गैरहाजिरी में शुद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जुबान भी जानता था। उसकी वसासत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक अधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं और ये अपनी बहनों की तलाश में आए थे। उन्हें बताया गया कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। इन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई तल्लक नहीं, हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं, मालूम नहीं वो कौन हैं होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं। शुद्दाद ने बताया यही 7 लड़कियां थी, जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर इन्हें देखना चाहते हो तो काहरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहमदिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने इन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शुद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने इन देहातियों को की मजलूमियों से मुतासर होकर उनकी खातर तवाज़े की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहां अली बिन सुफियान होता तो इन तीनों को इतनी आसानी से न जाने देता। उनकी सरागर सा नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी ना देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर जहाँ कोई खतरा न था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहां इन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इन तीनों में जो अधेड़ उम्र था वो मैग्ना मारियोस था। ये सलीबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आजाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान यूबी को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया था। इन तीनों ने कैंप से कुछ और जरूरी मालूमात भी हासिल कर ली थी। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाहुद्दीन यूबी यहाँ नहीं काहरा में है। शुद्दाद के साथ बातें करते जहां इन्हें ये मालूम हो गया कि लड़कियां काहरा को रवाना कर दी गई हैं, वहां उन्हें ये भी मालूम कर लिया था कि इनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कश्ती में आई थी। उन्होंने कश्ती साहल पर एक ऐसी जगह बांध दी थी जहां समंदर चट्टान को काटकर अंदर तक गया हुआ था। इन लोगों को अब काहरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे ये भी देख आए थे कि इस फौज के घोड़े और ऊंट कहाँ बंधे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं। 21 घोड़े या ऊंट चोरी नहीं किए जा सकते। अभी सूरज शुरू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर इन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोचकर पैदल चले कि काहरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि जिंदगी और मौत की मुहिम है। सलीबी फौज के सरबराहों और शाहों ने इन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कुंभों समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मैग्ना मारियोस को जेल खाने से लाया गया था। उसे डाकाजनी के जुर्म में 30 साल सजाए कैद दी गई थी। उसके साथ 2 और कैदी थे जिनमें एक की सजा 24 साल और दूसरे की 27 साल थी। उस जमाने में कैद खाने कसाब खाने होते थे। मुजरम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालमाना मशक्कत ली जाती और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती। कैदी रात को भी आराम नहीं कर सकते थे। ऐसी कैद से मौत बेहतर थी। इन तीनों को नाम के अलावा सजा माफ करने का वादा दिया गया था। सलीब पर हलफ लेकर इन्हें इस पार्टी में शामिल किया गया था। जिस पादरी ने उनसे हलफ लिया था उसने उन्हें बताया था कि वो जितने मुसलमानों को कत्ल करेंगे उससे 10 गुना उनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अगर उन्होंने सलाहुद्दीन यूबी को कत्ल किया तो उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अगले जहान खुदाई यसू मसीह इन्हें जन्नत में जगह देंगे। ये मालूम नहीं कि ये तीनों कैद खाने के जहन्नम से आजाद होने के लिए मौत की इस मुहिम में शामिल हुए थे या अगले जहान जन्नत में दाखिल होने के लिए या नाम का लालच इन्हें ले आया था। वो नफरत जो उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ डाली गई थी, बहरहाल वो अज़म के पुख्ता मालूम होते थे और उनका जोशो खरोश बता रहा था कि वो कुछ करके ही मिस्र से निकलेंगे या जाने कुर्बान कर देंगे। बाकी 18 तो फौज के मुंतखब आदमी थे। उन्होंने जलते हुए जहाजों से जानें बचाई थी और बड़ी मुश्किल से वापस गए थे। वो मुसलमानों से जिल्लत अमेज शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते थे। इनाम का लालच तो था ही। यही जज्बा था जिसके जोश से वो अंधे की मंजिल की सिमत पैदल ही चल पड़े। दोपहर के वक्त एक घोड़सवार सलाहुद्दीन यूबी के हेडक्वार्टर के सामने जा रुका। घोड़े का पसीना छूट रहा था।
और सवार के मुंह से थकन के मारे बात नहीं निकल रही थी। वो घोड़े से उतरा तो घोड़े का सारा जिस्म बड़ी जोर से कांपा। घोड़ा गिर पड़ा और मर गया। सवार ने उसे आराम दिए बगैर और पानी पिलाए बगैर सारी रात और आधा दिन मुसलसल दौड़ाया था। सुल्तान अयूबी के मुहाफिजों ने सवार को घेरे में ले लिया, उसे पानी पिलाया और जब वो बात करने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि किसी सालार या कमानदार से मिला दो। सुल्तान अयूबी खुद ही बाहर आ गया था। सवार उसे देखकर उठा और सलाम करके कहा, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, बड़ी खबर लाया हूं। सुल्तान अयूबी उसे अंदर ले गया और कहा, खबर जल्दी से सुनाओ। कैदी लड़कियां भाग गई हैं और हमारा पूरा दस्ता मारा गया है। उसने कहा, मर्द कैदियों को हमने जान से मार दिया है, मैं अकेला बच के निकला हूं। मुझे ये मालूम नहीं कि हमलावर कौन थे। हम मशलों की रोशनी में और वो अंधेरे में। अंधेरों से तीर आए और मेरे तमाम साथी खत्म हो गए। ये कैदियों के मुहाफिजों के दस्ते का वो आदमी था जो अंधेरे में गायब हो गया था और सरदानियों का घोड़ा खोलकर भाग आया था। उसने घोड़े को बिला रोके सर पर दौड़ाया था और इतना तवील सफर आधे से भी थोड़े वक्त में तय कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफियान और फौज के एक नाइब सालार को बुलाया। वो आए तो उस आदमी से कहा कि वो अब सारी बात सुनाए। उसने कैंप से रवानगी के वक्त से बात शुरू की और अपने कमांडर के मुतालिक बताया कि वो एक कैदी लड़की के साथ दिल बहलाता रहा और कैदियों से लापरवाह हो गया। फिर रास्ते में जो कुछ होता रहा और आखिर में जो कुछ हुआ उसने सुना दिया, मगर वो ये ना बता सका कि हमलावर कौन थे। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सफियान और नाइब सालार से कहा, इसका मतलब ये है कि सलीबी छापामार मिस्र के अंदर मौजूद है। हो सकता है। अली बिन सफियान ने कहा, ये सहराई डाकू भी हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियां 6 डाकुओं के लिए बहुत बड़ी कशिश थी। तुमने इसकी बात गौर से नहीं सुनी? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसने कहा है कि मर्द कैदी लाशों के हथियार उठा लाए थे और मुहाफिजों को कत्ल करने लगे थे। मुहाफिजों में से 2 ने इन्हें तीरों से हलाक कर दिया। इसके बाद उन पर हमला हुआ। इससे यही जाहिर होता है कि सलीबी छापामार उनके ताकब में थे। वो कोई भी थे। सुल्तान मोहतरम, नाइब सालार ने कहा, फौरी तौर पर काम करने वाला काम यह है कि इस अस्करी को रहनुमाई के लिए साथ भेजा जाए और कम से कम 20 घोड़सवार जो तेज रफ्तार हों ताकब के लिए भेजे जाएं। ये बात की बात है कि वो कौन थे। मैं अपने एक नायब को साथ भेजूंगा, अली बिन सफियान ने कहा। इस अस्करी को खाना खिलाओ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसी थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में 20 सवार तैयार करो और ताकब में रवाना कर दो। अगर जरूरत समझो तो ज्यादा सवार भेज दो। मैंने जहां से घोड़ा खोला था वहां 8 घोड़े बंधे हुए थे। मुहाफिज ने कहा, वहां कोई इंसान नहीं था। हमलावर वही हो सकते हैं और अगर घोड़े 8 तो वो भी 8 ही होंगे। छापामारों की तादाद ज्यादा नहीं हो सकती, नाइब सालार ने कहा। हम इंशाल्लाह इन्हें पकड़ लेंगे। ये याद रखो कि वो छापामार हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और लड़कियां जासूस हैं। अगर तुम एक जासूस या छापामार को पकड़ लो तो समझ लो कि तुमने दुश्मन से के 200 अस्करी पकड़ लिए हैं। मैं एक जासूस को हलाक करने के लिए दुश्मन के 200 अस्करियों को छोड़ सकता हूं। एक औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक जासूस और तकरीबकार औरत अकेले पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकती है। ये लड़कियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो मिस्र के अंदर रह गई तो तुम्हारा पूरे का पूरा लश्कर बेकार हो जाएगा। एक जासूस या जासूसा को पकड़ने और जान से मारने के लिए अपना 100 सिपाही कुर्बान कर दो। ये सौदा फिर भी सस्ता है। छापा मार अगर ना पकड़े जाएं तो मुझे परवाह नहीं। इन लड़कियों को हर कीमत पर पकड़ना है। जरूरत समझो तो तीरों से इन्हें हलाक कर दो, जिंदा निकल कर ना जाएं। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 तेज रफ्तार सवार रवाना कर दिए गए। इनका रहनुमा ये मुहाफिज था और कमांडर अली बिन सफियान का एक नायब जाहदैन था। इन सवारों में फखरुल मिस्री को अली बिन सफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। ये फखर की ख्वाहिश थी कि इसे बालियान और मोबी के ताकब में के लिए भेजा जाए। ये तो ना अली बिन सफियान को इल्म था ना फखरुल मिस्री को कि जिनके ताकब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मोबी और इनके 6 वफादार साथी हैं। उधर से ये 20 सवार रवाना हुए, जिनमें 21वां इनका कमांडर था। इनका हदफ लड़कियां थी और इन्हें छुड़ाकर ले जाने वाले। उधर से सलीबियों के 20 कमांडो आ रहे थे, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। इनका भी हदफ यही लड़कियां थी, मगर इनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम न था कि जिनके ताकब में वो जा रहे हैं वो कहां हैं। सलीबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशीबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में जहां खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। उन्हें बैठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। इनके सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शुतरबान थे। ये 21 सलीबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे इन्हें यकीन ना आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही इनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रखकर कसम खाकर आए हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा।
یہ معجزہ ہے، خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے، تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ کیونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑ سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے، شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شب خون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شب خون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ اس وارکر اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شب خون اور چھاپوں کی نہیں سوگی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لے لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے۔ اس لیے فوجوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھے کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی سکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نشف سب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے، 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلوار اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر دیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا کر ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا، بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنا شروع کر دی، اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ ہلاک کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا، بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھی، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر طرف خون ہی خون تھا، جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے تھے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں، آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خوراک میں خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے تھے، ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا، اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں، وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہکا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا، اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے، میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بھولے۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں، تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا، ہم فحشہ نہیں ہیں، میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہی، یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں، میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا۔ بالیان نے شاہانہ جلال سے کہا،
तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, इनमें एक भी मरियम नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं, मोबी ने कहा। हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है। इस फर्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी असमत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फर्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रही हो ये अय्याशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज हम अय्याशी में उलझ गई उस रोज से सलीब का सवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी असमत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज़ है और कारी सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार खैर समझती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मोबी ने कहा। तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की है? सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुक्मरानी से आजाद होने के लिए, बालियान ने कहा। सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूं लेकिन इससे पहले मैं सुडानी हूं। मैं सबसे पहले सलीबी हूं, मोबी ने कहा। ईसाई हूं और उसके बाद उस मुल्क की बेटी हूं जहां मैं पैदा हुई थी। ये मोबी ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रही हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो तो मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं उस मजहब पर लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने और शराब पीने को सवाब का काम समझता है। बालियान अचानक बेदार हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी असमत मुझसे नहीं लुटाई बल्कि मेरी असमत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए असमत कोई ज्यादा कीमत नहीं। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी असमत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है, मगर तुम्हें रास्ते में भटका हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ जहां तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। मैं इस रोशनी में नहीं जाऊंगा, बालियान ने कहा। देखो बालियान, मोबी ने कहा, मर्द जंगजू, मर्द वादे और सौदे से फिरा नहीं करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुकी हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीदकर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनकाही बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा ना दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मोबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गर्ज कर बोला, खामोश रहो लड़की। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरा दुश्मन हो सकता है लेकिन मैं उस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नाम लेवा है। मैं इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिस्र और सूडान कुर्बान कर सकता हूँ। उसके अजीम और मुकद्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो, मोबी ने कहा। एक शराब दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं किसी फाहिश सलीबी का खामद नहीं हो सकता। उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। उसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, वो दौड़ते हुए आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी, इन्हें वापस काहरा ले चलो। काहरा? एक ने हैरान होकर कहा, आप काहरा जाना चाहते हैं? हाँ, उसने कहा, काहरा। हैरान होने की जरूरत नहीं। इस रेगिस्तान में कब तक भटकते रहोगे? कहाँ जाओगे? चलो, घोड़ों पर जीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो। सहरा में ऊंट का सफर बे आवाज पा होता है। घोड़ों के टापों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ऊंट के पांव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती। बालियान जिस वक्त मोबी के साथ बातें कर रहा था, इसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊंट और एक छोटे से रेतले टीले की ऊंट में खड़ा इन दोनों को और 6 लड़कियों को और 6 आदमियों को देख रहा है। वो सलीबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। उस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निसफ मील दूर उसने पड़ाव किया था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका शिकारों से निसफ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों की ये ड्यूटी दी थी कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूमाएं और जहां इन्हें कोई खतरा या काम की चीज नजर आए आकर इतला दें। इस काम के लिए ऊंट ही मौजूद सवारी थी, क्योंकि इसके पांव की आवाज नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ सीमतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए नहायत अच्छा था, इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे।
एक शुतर सवार को रोशनी सी नजर आई तो वो इस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी मशल थी जो बालियान के आरती कैंप में जल रही थी। शुतर सवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि एक ऊंट पर सवार होकर आगे देखा जा सकता था। ऊंट और सवार उसके पीछे छुप गए थे। उसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बालियान के फौजी दोस्तों के साथ गपशप लगा रही थी। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। इनमें वो घोड़े भी थे जो इन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। सलीबी शुतर सवार ने ऊंट को मोड़ा, कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊंट दौड़ा दिया। ऊंट के लिए निस्फ मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी जाया ना किया। शुतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों के कदमों की आवाज से शिकार के चुकन्ना हो जाने का खतरा था। जिस वक्त यह पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े की पीठ पर बांध दो। इसके दोस्त हैरतज़दा होकर बालियान को देख रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने उसके साथ बहस शुरू कर दी और वो वक्त जाय होता रहा। बालियान ने इन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि वो जो कुछ कह रहा है होश ठिकाने रख कर कह रहा है और काहरा चलने जाने में ही मसलत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में इसे देख रही थी कि बालियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीने डाली और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं, लड़कियों को काहरा ले जा रहे हैं। वो हमलावरों को सुल्तान यूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर ने इसके दिल में उतरकर उसे खामोश कर दिया। इसके दोस्त इतने ज्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला ना कर सके, समझ से पहले ही खत्म हो गए। सलीबियों का छापा कामयाब था, लड़कियां आजाद हो चुकी थी। छापामार उन्हें फौरन अपनी जगह ले गए। उन्होंने कमांडर को पहचान लिया, वो भी इनकी पार्टी का जासूस था। उन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सुल्तान यूबी के भेजे हुए सवार इस जगह से अभी दूर थे जहां से कैदी लड़कियां बालियान के आदमियों ने रहा कराई थी। रात को भी चले जा रहे थे। वो ताक़ब में वक्त जाय नहीं करना चाहते थे। रहनुमा उनके साथ था। वो रास्ता और जगह भूला नहीं था। वो उन्हें उस जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक मशल जलाकर देखा गया, वहां राबन और उसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थी। ये चीरी फाड़ी और खाई हुई नजर हुई थी। उस वक्त भी सहराई लुमड़ियां और गिदड़ उन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक्त इन्हें गिद्ध खाते रहे थे। मुहाफिज अपने कमांडर को उस जगह ले गया जहां से उसने घोड़ा खोला था। वहां से मशल की रोशनी में जमीन देखी गई। घोड़ों के कदमों पे निशान नजर आ रहे थे और सिमत की निशानदही कर रहे थे जिधर ये गए थे। मगर रात के वक्त इन निशानों को देख देख कर चलना बहुत मुश्किल था। वक्त जाय होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं क़याम किया गया। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। इस तारीखी कहानी की नई वीडियो के साथ जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए और नई वीडियो देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।